دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ انتہائی مختصر سے لمحات میں اس دہلیز عصمت پہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں جس کی دہلیز پہ پہلے رکنے والے کو محمد کہتے ہیں۔ 2 یا 4 جملے بسم اللہ۔ کسی آقا زادی کی عزت پہ کسی خطیب میں، کسی ذاکر میں، کسی بشر میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ ببانگ دہل ممبر پہ آ کے کہے کہ میں آپ کو فضائل سیدہ سناؤں۔ اس بی بی کا فضائل سنانے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ بول سکے وہ زحمت فرمائے، لہجہ توحید ہو، سماعت رسول کی ہو، لفظ قرآن کے ہو، پھر کوئی بتائے کہ بطول کس سے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا مادر حسنین کو کہتے ہیں، کسی نے کہا رسول کی بیٹی کو کہتے ہیں۔ ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں۔ میں صرف اپنی معرفت کا سفر سنانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے جتنے بھی ممبر پہ آتے ہیں ہم اپنی اپنی بھیک، اپنی اپنی خیرات آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ کما حقہ ہو، ان ہستیوں کا ذکر ہم سے ہو ہی نہیں سکتا جن کے ذاکر کو اللہ کہتے ہو، جس کے ذاکر کا نام توحید ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ان کے ذاکر ہیں؟ ہم تو اپنے اپنے عرفان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دہلیز پہ سجدہ کیا، انہوں نے ترس کھا کے جو خیرات دی، اس خیرات ہم لفظوں میں سمیٹ کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اس سے بدل گئے۔ بسم اللہ کرتا بسم اللہ کرتا جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اگلی صدر پہاڑ میں قدر نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں لفظ پھر دہرا دیتا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میری نظر ایک ایک چہرے پہ ہے، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ پہ بھی ہے۔ جو ہاتھ تائید کے لیے اٹھا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس کے چہرے پہ فضائل سیدہ سن کے مسکراہٹ آئی، میں اس سے بھی دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ جو بندہ خاموش رہا اس کے لیے میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ بندے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کعبے سے زیادہ پاک، کعبے سے زیادہ پاک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ، بائے بسم اللہ سے شروع کریں، سینے والناس تک چلے جائیں۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے خدا سے پوچھا ہے اللہ کا کتاب تو بتا یہ خدا کا گھر کتنا پاک ہے، تو خدا علم یزل سے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے خدا نے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ گھر توحید کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے بطول کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں گا۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ ایک اپیل، 4 چیزیں میری قوم کبھی نہ بھولے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुजुर्ग हो, बच्चों को समझाओ, बच्चे हो, ज़हनों में अकीदा बना के रखना। 4 चीजें कभी जिंदगी में ना छोड़ना। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। नहीं चाहिए हमें वो बंदा शिया जो अली वलीउल्लाह भी पढ़े और बतूल के कातिल को रज़ी अल्लाह भी कह दे। अगर उसकी मजबूरी है वो किसी और मजहब पे चला जाए, हम बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। जमहूरियत है, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक को ठीक कहना चाहिए। हद हो गई है, मसलहत पसंदी की हद होती है दुनियादारी की। भले कहते जी आखिर दुनियादारी भी तो रखनी है, बाद औकात में हमें कहना पड़ जाता है ना। छोड़ दो फिर शिया कहलवाना, शियत नाम ही कुर्बानी का है। जुबानें चौक में दी जाएं तो बंदे मीसम बनते हैं, हाथों में कड़ियां पहन के अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए तो मुख्तार बनते हैं। मुश्किल दौर में सांस लेना सीखो। जालिम जाबर बादशाह के सामने कलमा हक कहना सीखो। या तो किताबों में लिखा ना हो, किताबें जब भरी पड़ी हैं, फिर शिया मरता मर सकता है। हम बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हम मिंबर पे कहते हैं, हम छुप के नहीं कहते, लाउड स्पीकर में कहते हैं। जमाना जितना भी मुश्किल आ जाए, दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक आ जाए, पाबंदियां लग सकती हैं, जुबानें कट सकती हैं। हम नहीं होंगे कोई और आ जाएगा, वो नहीं होगा कोई और आ जाएगा। हक मिंबर से बयान होना चाहिए। अली और वलीउल्लाह पे समझौता कोई नहीं, मातमे हुसैन फतवे का मोहताज कोई नहीं, सैयद की तौहीद करने वाला हरामजादा है, बतूल के दुश्मन की इज्जत करने वाला हलाली नहीं हो सकता। लोग आप पे इतराज करते हैं जी, ठीक है जी, बरमला चौकों में बबांगे दहौल, ये लानत नहीं करनी चाहिए। ये काम हमने नहीं शुरू किया, ये तौहीद का दिया हुआ तरीका है। मौत के दामन में वुसअत नहीं, किबला तशरीफ फरमाए, बाबा जी तशरीफ फरमाए, मेरे इंतहाई मेहरबान दोस्त मेरे भाई जनाब ज़ाकिर अब्बास रजा झंडवी साहब तशरीफ फरमाए, मोहसन अब्बास साहब तशरीफ फरमाए। मैं कुरान से अल्लाह की बतूल के दुश्मन पे लानत सुनाता हूं, फिर उसके बाद तो कोई एतराज नहीं। कुरान से देखते हैं कि अल्लाह ने बतूल के दुश्मन पे लानत की है या नहीं। अगर निकल आए कुरान से वल्लाह हुसैन, मैं मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, अभी बहुत से ऐसे फजाइल के गोशे बाकी हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हम लकीर के फकीर बन के चले आ रहे हैं, कोई नई तहकीक नई रिसर्च है ही नहीं। कम से कम पिछले 2 सदियों से 200 साल से वही रवायात पढ़ी जा रही हैं जो 200 साल पहले पढ़ी जाती थी। देखिए, तहकीक रोजाना बदलती है, रिसर्च रोजाना तब्दील होती है। क्या बात। जाबिर बिन हयान है, उसकी थ्योरी को कोई ना कोई अगला चैलेंज कर देगा, कहेगा नहीं ठीक है, इसकी थ्योरी उसके दौर में थी, आज ये है। बुजुर्गों के दौर में मोबाइल नहीं था, आज है। रोज नई तरक्की हो रही है, तो हमें चाहिए कि फजाइल आले मोहम्मद के लिए रिसर्च और तहकीक की जाए। जिन किताबों में फजाइल आले मोहम्मद थे, ना उनका उर्दू में तर्जमा किया गया, ना उन्हें पाकिस्तान की मार्केटों में, बल्ले बर्रे सगीर पाको हिंद की मार्केट में नहीं आने दिया। अरब में वो सारा कल्चर मौजूद है, अरब में वो सारा लिटरेचर मौजूद है, अरबी जुबान में मौजूद है। हमारी मजबूरी ये है कि जो अरबी पढ़ लेता है वो फजाइल पहुंचाता नहीं। मजबूरी सुनाने लगा, पूरी जुर्रत के साथ बाबा जी, मैं मजबूरी सुनाने। क्या बात है जी, क्या बात है। जिन्होंने अरबी पढ़नी है, हमने उन्हें मदारस में भेजा, वो मदरसों में गए, उन्हें पता चला कि ये अरबी जुबान है। जब उन्होंने किताबें पढ़ी, अब उन्होंने पर्दा डाल दिया। जब हम जमाना तालिब इल्म मदारस में पढ़ते थे तो हमें भी कहा जाता कि ये ऐसी रवायात हैं
जो आप अवाम में ना पढ़िएगा। क्यों? इसलिए लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा। अभी लोग इस काबिल नहीं। मालिक का फरमान है कि हमारा हर फजाइल, मौला का फरमान है हमारा हर फजाइल हमारे चाहने वाले के सामने पढ़ा करो। अगर उसमें ये चीज हुई कि वो हमारा फजाइल बर्दाश्त कर सके तो हम उसे या तो मार्फत अता कर देंगे या फिर उससे वो फजाइल ही वापस ले लेंगे। उसे समझ ही नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात, उसके यहां से गुजर जाएगा। अब यहां तक कि बस एक दलील मैं दूंगा, एक बात, मुबाहला पढ़ा गया, पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। खुदा ने कहा कि फकुल तालू नदु अबनान व अबनाकुम निसान व निसाकुम व अनफुसन व अनकुसुम सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। खुदा ने कहा ये बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते, ये निसा लेके आए, हम निसा लेके आते, ये अपने नफ्स लेके आए, हम नफ्स लेके आते। ठीक है जी, ऐसे ही मुबाहला पढ़ा गया। जिसने पढ़ा उसने कहा कि जब ये आयत आई रसूल खुद गए, अमीर अल मोमिनीन को लेके गए, हसनैन करीमैन को लेके गए, शहजादी कौनैन को लेके गए। ये 5 हस्तियां मैदान मुबाहला में गई, यही पढ़ा गया। ये बताया गया कि इधर से ये 5 आए, ये नहीं बताया जाता कि उधर से कौन आए। ये बताया गया कि इधर से ये नहीं बताया गया कि उधर से कौन। मैं बड़ी जरूरत के साथ और बड़े खुद एतमादी के साथ इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे पीछे जो दो जाकर बैठे हैं इंतहाई सैयद और फकीर परस्त हैं। और वाजिबुल एहतराम बाबा जी तशरीफ फरमाए, सैयद तशरीफ फरमाए, पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक एक चेहरे पे शजरे की किताब खुली हुई नजर आ रही है। अलीन वलीउल्लाह चेहरों पे शजरे बन के खुला हुआ। इधर से ये 5 आए, उधर से कौन आया था? अकल तस्लीम नहीं करती कि उधर से ईसाइयों की औरतें आए और नबी मुकाबले पे सैयदा को ले जाए। अकल तस्लीम नहीं करती कि उधर से पादरी आए, इधर से अली चले जाए। ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा। फिर यहाँ मिंबर से एक दलील पढ़ी जाती है। मैं इंतहाई माजरत के साथ इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूँ, मैं पहले दलील पढ़ूंगा, उस दलील के बाद फिर उस दलील पे तहकीक पढ़ूंगा। दलील ये दी जाती है कि यही पंचतन इसलिए गए थे कि खुदा ने कुरान में कहा था कि सच्चे लेके आना, जिसने माँ की गोद से लेकर अब तक झूठ ना बोला हो, लिहाजा नबी इन्हें लेके चले गए। मुझे माफ कीजिएगा, ये उनके अकीदे में बड़ी बेहतरीन बात होगी, लेकिन इसमें तौहीन है। नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी, तौहीन हो गई। नबी के घर में कोई सच्चों की कमी। चले मैं अगली जुमला कहने लगा, अगले जुमले पे अब मुझे जो तहकीकी बंदे अब उन्हें वो चाहिए। नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी। अगर सच्चा ही चाहिए था, नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा था, जिसके बारे में खुद नबी ने हदीस कही हुई है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया कोई नहीं किया। सच्ची मस्तूर चाहिए थी तो घर में शहजादी फिजा मौजूद थी, जिनका सलमान जैसा सच्चा हो, जिनके नौकर सच्चे हो, फिर सरदार क्यों गए? जिनके नौकर काम कर सकते हो वो काम नौकरों के होते हुए सरदारों ने क्यों किया? इसका मतलब ये 5 बता रहे हैं कि उधर से भी कोई छोटा नहीं आ रहा। मुबाले की मुकम्मल तहकीक अगर पढ़ी जाए, मुबाले की मुकम्मल दस्तावेज अगर पढ़ी जाए, तो जो रसूल से मदीना में मुबाहला करने के लिए पहुंचे थे, पहले मुबाहसा हुआ, पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा था। अबू हारिस मानने के लिए तैयार नहीं था, या जबरील ने आके नबी के कदमों पे हाथ रखा और फरमाया खुदा कहता है कि तू इनसे क्यों दलील पे दलील दिए जा रहा है? फरमाना आजा मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, तू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसे क्या फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही, ये मरियम लेके आए, हम ज़हरा लेके आते हैं, ये हसनैन हम लेके आते हैं, ये ईसा को लेके आए, ये जबरील लेके आए, हम उस्ताद जबरील लेके आए। इन्हें कहो फिर ऐसे है। इन्हें को फिर ऐसे तो ऐसे सही। ये लाए मरियम, ये लाए ईसा को। रसूल ने कहा तेरा तवस्सल है ईसा से, उसने कहा है। रसूल ने फरमाया बुला फिर उससे, कल पहुंच मैदान में
अकेला ना आना, क्या बात है, मरियम साथ लाना, ईसा को साथ रखना, जरूरत है तो जबरील को उतार। वाह, अबुल हारिस ने कहा ठीक है, मेरा तवस्सल है ईसा से, मैं बुलाऊंगा, उसके मजहब की बात है। तू कह रहा आखिरी नबी है, ईसा अगर आ गया जमाने में फिर जमाने में ईसाइयत ही होगी, फिर कोई नया मजहब नहीं आएगा। रसूल ने कहा ठीक है, उतार ईसा को। अभी यूं अबुल हारिस उठ के गया है, मरकजी मस्जिद के दरवाजे पे ना पहुंचा, ये जबरील ने अगर दोबारा कदमों पे हाथ रखे, उसने कहा खुदा करे इसे वापस बुला, इसे कहे अकेला ना आना, हमने भी अकेले तुझे नहीं भेजना। फिर हम लानत को भी भेजेंगे और दुनिया को बताएंगे जो भी इनके मुकाबले पे आएगा। जो इनके मुकाबले पे आएगा। अभी तफसीलात का वक्त नहीं, तफसीलात का वक्त होता मैं मुकम्मल मुबाहिला आपको सुना देता। इधर से रसूल पंचतन को लेकर रसूल पंचतन के साथ इधर मैदान मुबाहिला में पहुंचे। कुरान की इज्जत और तकद्दुस की कसम है, किताबें लिखती हैं। इधर से अबुल हारिस एक पहाड़ के दामन में ईसा को बुला रहा था, उतरा ईसा, उतरा मरियम, बचा ले आज हमारे मजहब को, आज ईसा तेरी ईसाइयत बचने का वक्त है, उतार को मरियम को, उतरा ईसा। अभी ईसा से तवस्सुल हो रहा था, इधर से पंचतन उतरे। खुदा ने कहा मैंने मुबाहले के मैदान में लानत को भेज दिया था, मस्जिद के मौलवी से लेकर मक्के के मुफ्ती तक मुझे कोई बताए कि खुदा ने कुरान में लिखा हो कि जब ईसाइयों ने माफी मांग ली वो लानत वापस चली गई हो, या वो लानत रहमत की सूरत में बदल गई हो। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी कि कोई पंचतन के मुकाबले पे आए, कोई पंचतन के मुकाबले पे, कोई पंचतन के मुकाबले पे आए, कोई पंचतन के मुकाबले पे आए। ईसाई अपने मुवक्कफ से हट गए, ईसाइयों ने माफी मांग ली, लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़ी अरसे बाद ही पंचतन में एक बीबी के मैदान में जाके खड़ी हुई, बीबी ने दरबार में जाके कहा मुझे मेरी जगीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने। तुझसे बीबी ने दुश्मन से लाना, बीबी ने कतरा से लाना। मेरा मुतालबा भी जगीर रही। खुदा ने लानत मुबाहला में ईसाइयों के लिए नहीं भेजी थी, बतूल के दुश्मन के लिए भेजी। क्या बात है, यही शहजादी मुबाहले में इसलिए थी, खड़ी होकर मुबाहले में बताऊं जो मेरे मुकाबले पे आए। कुरान रख मेरे सर पे। मुबाहले के मैदान में अबुल हारिस ने अपने सर से इमामा उतारा, कौम के सामने जाकर के जिसके पास जो है मेरे इमामे में रखो। मैंने कहा माफी मांग ली, अब क्या चाहता है? उसने कहा शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली बेटी। सादात शरीफ फरमाए मुझे सतर माफ कर देना, मैं गलत बड़ो नबी की बेटी का मुसलमान हूँ। किताबें कहती हैं नबी के कदमों पे जाके अबुल हारिस ने इमामा रख के हाथ जोड़ के कहा माल भी देता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, तेरे कदमों पे हाथ रख के कहता हूँ मेरी कौम मेरी बड़ी इज्जत करती है। मैंने आज तक कौम के सामने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, मैं तेरे सामने यूं हाथ बांध रहा हूँ। तेरे मजहब में बुजुर्गों की इज्जत है, मैं हाथ बांध के कहता हूँ मुबाहले के मैदान में जाने से पहले अपनी बेटी से कह, बोल के कहे कि मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहना था। नबी ने कहा क्यों उससे कहवाना चाहता है? उसने कहा जब ये चल के आ रही थी मुझे चलने का तरीका बता रहा था, ये जिंदगी में कभी कहीं चल के नहीं गई। इतना जुमला कहना था। नबी ने सर से इमामा उतारा, चीखे मार मार के रोया हुसैन का नाना। बीबी रो के कहती है बाबा तू क्यों रो रहा है? फरमाया आज ईसाइयों ने इतना हया किया, दरबार भी मेरा होगा। 4 घंटे चुप करके
मिंबर से मोहम्मद की बेटी का कत्ल। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा है, मुझे रसूल की इज्जत की कसम, अली की विलायत की कसम, ज़हरा के पर्दे की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, हसन के कफन की कसम, इतनी बड़ी कसमें खा के मैं मिंबर पे इसलिए कह रहा हूं, गलत पढ़ू, नबी का मुजरम बनो, ज़हरा का मुजरम बनो, क़यामत वाले दिन अली अपने नौकरों से ना उठाए, हुसैन मातमियों में से ना उठाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं कोई नहीं देता, सिर्फ मिंबर पे इसलिए दे रहा हूं कि क़यामत वाले दिन मैं रसूल की बेटी के सामने हाथ जोड़ के कहो, बीबी मैं कसमें खा खा के मिंबर से तेरा हक बढ़ता रहा हूं, मुझे बीबी की इज्जत कसम, अगर कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा हो, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। कत्ल हुई है सहाबियों के हाथों मोहम्मद की बेटी। सैयद मुझे माफ कर देना, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। देख दी चाचा सलमान, इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं। सलमान ने कमर पे हाथ रखे, कहा जिसके मिंबर पे बैठा है उसकी बेटी सतून के पीछे खड़ी है। ये देख के लगा सलमान पूछ मोहम्मद की बेटी से क्या लेने आई है? बीबी ने रो के कहा अपना पे का हक मांगने के लिए आई हूं। मैं बीबी का मुकदमा सुनाने लगा हूं, जो हुसैन के नौकर बैठे, हुसैन के माथ बैठो, जिगर संभालना। बीबी ने कहा मैं पे का हक लेने के लिए आई हूं। इसने कहा तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर। बीबी ने कांपते हुए हाथों से बुरके से तहरीर निकाली, तहरीर निकाल के गई, ये दस्तखत है मोहम्मद के, ये मोहर है नबूवत की। 1200 बंदा कुर्सियों में बैठा हुआ था, एक एक बंदे को तहरीर दिखाई गई। बता ये मोहर मोहम्मद की है, बता ये दस्तखत मोहम्मद के है। एक एक सहाबी तहरीर पहचानता रहा। मोहम्मद की बेटी रोती हुई खड़ी रही। 1200 बंदों ने तहरीर को पढ़ा, तहरीर हाकम के हाथ में आई। इसने तहरीर को पढ़ने के बाद कहा बतूल तेरे पास इस तहरीर पे कोई गवाह है तो लेके आ। इतना कहना था, ये हसन रोता हुआ उठा, अपना अमामा उतार के अपने हाथों पे रखा। हुसैन ने अमामा हाथों पे रखा, देखा हम अपनी माँ के गवाह हैं, हम गवाही देते हैं, ये तहरीर हमारे नाने की है। गलत पढ़ू, नबी का मुजरम बनू। इसके हाथ में तहरीर थी, वाशकान शक्कन शक्का। इसने तहरीर को फाड़ा, फाड़ के फेंका था। बतूल तू झूठ